Hello students, in today's video we will solve 5 marker question of chapter issue of debentures. सबसे पहले हम करेंगे CBSE sample paper का question of year 2022. Question कह रहा है योग दत्रा appointed a marketing expert Mr. Karthike as a CEO of the company with a target to penetrate their roots in the rural region. Mr. Karthike discussed the ways and means to achieve target of the company with financial production and marketing departmental heads and asked the finance manager to prepare the budget. After reviewing the suggestion given by all the departmental heads, the finance manager proposed an additional fund of rupees 52,50,000. अब इस अमाउंट को रेज करने के लिए एज Yog Datra Limited is a zero debt company. To avail the benefit of financial leverage, finance manager has proposed to include debt in capital structure. That means debentures को introduce करने की बात हो रही है यहाँ पर. After deliberation on 1st April 2020, the board of directors decided to issue 6% debenture of 100 each. So this is the face value. Now these debentures are issued at a premium of 5%. That means जब हम इन debentures को issue करेंगे, we are issuing at them rupees 105. That means it includes both the amount of face value as well as premium. However, even at the time of redeeming these debentures, an amount of 110 is being paid. That means 100 rupees of face value will be refunded and 10 rupees extra as premium on redemption. These are the terms of issue and these are the terms of redemption. Now, the question is asking us to calculate the number of debentures, journal entries for the allotment of debentures, writing of loss on issue of debenture, amount of fixed annual obligation. So what is a fixed annual obligation here? It is interest on debentures. और लास्ट हमें प्रिपेयर करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. अब बेटा यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू के टाइम कितने डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं ये बताना है. तो हम जो टर्म्स यूज करेंगे वो इशू की ही यूज करेंगे. यानी फेस वैल्यू इज 100 एंड प्रीमियम ऑन इशू इज 105 और हमें अमाउंट जो एडिशनल फंड रेज करना दैट इज 52,50,000. तो यानी अगर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं तो हम इस 52,50,000 को फेस वैल्यू दैट इज 100 प्लस प्रीमियम विच इज 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे 50,000. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का वो हमने सॉल्व किया. बहुत इजी है ये पार्ट. सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें तो वहां पर हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है. General entries at the time when we are issuing debentures. So what is the first entry? First entry is bank account debit to see. यहाँ पर मुझे डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही लिखना पड़ेगा बिकॉज लमसम का केस है. हम डिबेंचर्स के लिए एज अ डिबेंचर होल्डर जब अप्लाई कर रहे हैं तो हमें साथ ही डिबेंचर्स अलॉट भी हो रहे हैं. और कितना अमाउंट बेटा हमें अलॉट हो रहा है? इट इज 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है और 105 रुपीज हमें मिल रहा है. दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट एज अ कंपनी वी आर गेटिंग 52,50,000. नाउ मूविंग अहेड नेक्स्ट एंट्री. जितने अमाउंट से मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया जितने अमाउंट से हमने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है सेम अमाउंट से मुझसे क्या करेंगे डेबिट कर देंगे. So how much amount will be debited to application and allotment account? It is 52,50,000. Now, how much amount do we transfer to debentures account? Debentures account में बेटा हमेशा face value ही आती है. तो देखो हमारे पास 50,000 debentures है. Per debenture face value 100. So how much amount will be transferred? 50 lakh. And now we have to credit security premium reserve जो कंपनी का एक तरह से प्रॉफिट ही है. कैपिटल प्रॉफिट है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना प्रॉफिट हो रहा है 50,000 डिबेंचर्स पर कितना पैसा इशू के टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है 5 रुपीज. ये 5 रुपए एक्स्ट्रा है. तो अब हम इस 5 रुपीज को ट्रांसफर करेंगे एसपीआर में. इट इज 2,50,000.
नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो 100 वाला डिबेंचर है उसको जब हम रीपे करें तो कितना रीपे कर रहे हैं, 110। सो हाउ मच एक्स्ट्रा आर वी रीपेइंग, 10 रुपीज। वही 10 रुपीज हमारा क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपीज का हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। और जितने अमाउंट का हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है उतने ही अमाउंट का हमारा क्या होता है, लॉस ऑन इशू। सो व्हाट विल बी द लॉस ऑन इशू अमाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का अगर हम अमाउंट बोलें तो सेम अमाउंट हमारे पास आएगा विच इज रुपीज 5 लाख। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर। नाउ आफ्टर पासिंग दिस एंट्री, ये जो हमारा लॉस ऑन इश्यू है बेटा, इसको राइट ऑफ करना है। और इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं एसपीआर, दूसरा हम यूज करते हैं कैपिटल रिजर्व, और कुछ भी ना हो तो हम किसको यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो 5 लाख का लॉस है और आपके पास एसपीआर कितना अवेलेबल है, 2,50,000। तो 2,50,000 तो हम एसपीआर से यूज करेंगे। कैपिटल रिजर्व हमारे पास है नहीं, तो रिमेनिंग बैलेंस कहां से यूज करेंगे बेटा, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अब इसकी जर्नल एंट्री करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। मूविंग अहेड, अब हम जर्नल एंट्री बेटा पास करेंगे लॉस ऑन इशू की। सो व्हाट विल बी द थर्ड पार्ट, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू। अब हम जब लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे तो देखो ये लॉस वैसे हमने डेबिट किया था, अब लॉस जब राइट ऑफ होगा तो लॉस ऑन इशू क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये अमाउंट जो हमारे पास 5 लाख रुपीस का यहाँ पर राइट ऑफ करने के लिए है, इसके लिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, वी आर हैविंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और हमारे पास बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने रुपए का है, 2,50,000। एंड अगर हमारे पास कोई और अमाउंट नहीं है राइट ऑफ करने के लिए रिजर्व में, तो व्हाट वी विल यूज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और कितना अमाउंट यहां से राइट ऑफ कर देंगे, रिमेनिंग 2,50,000। सो वी कैन ऑल्सो से दिस इज आवर बैलेंसिंग अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर। नाउ आफ्टर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू द एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, जो मैंने अभी आपको बताया इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अभी आपके पास 6% डिबेंचर अकाउंट लिखा हुआ है, तो जो अमाउंट हम पे करेंगे दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी विल चार्ज ऑन दिस डिबेंचर इज 6%। पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पर करते हैं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो देखो 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 है, तो हमारे पास 50 लाख के डिबेंचर हैं जिसपे अगर हम 6% का इंटरेस्ट पे करते हैं, द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनुअल ऑब्लिगेशन इज 3 लाख। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अगर एक बार ये क्वेश्चन सेट हो जाए तो 5 नंबर डिबेंचर्स में स्कोर करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, जहां हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट मेंटेन करना है। अब अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो इट इज मेयर लेजर पोस्टिंग ऑफ द जर्नल एंट्रीज दैट वी हैव जस्ट पास्ड। नाउ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देखो अपने लॉस ऑन इशू को डेबिट किया था और सेम अमाउंट क्रेडिट किया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में, तो लॉस ऑन इशू अकाउंट में लॉस ऑन इशू अकाउंट का नाम तो आएगा नहीं, तो ऑल्टरनेटिव हमारे पास किसका नेम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और कितना अमाउंट था प्रीमियम रिडम्पशन का, जो हमारा एक्चुअल में लॉस बना दैट इज 5 लाख। अब इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट अवेलेबल है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हमारे पास अवेलेबल है 2,50,000। तो रिमेनिंग बैलेंस हम कहां से यूज करेंगे, अभी आपको मैंने बताया कुछ नहीं दे रखा राइट ऑफ करने के लिए कि कहां से राइट ऑफ करें, सो वी विल ऑलवेज यूज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज 2,50,000। इतना आसान है लॉस ऑन इश्यू अकाउंट।
एंड आई होप दिस अकाउंट इज क्लियर। और अगर ये क्लियर हो गया तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इश्यू ऑफ डिबेंचर का इज नो मोर अ टास्क फॉर यू। However, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग के लिए I've taken few more questions of 5 मार्कर। ये तो टाइपोलॉजी हमें गिवन है सीबीएसई सैंपल पेपर में। अब नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन करेंगे। अगेन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में इट इज सेइंग यू हैव टू pass journal entry for allotment of debenture, for payment of interest, for closing of interest on debenture, writing of loss on issue, and we also have to prepare loss on issue account. Okay. अगर अब इस क्वेश्चन को हम थॉरली रीड करें, 1 अक्टूबर 2020 को गुजरात कारपेट लिमिटेड ने इशू करे हैं 7% वाले 80,000 डिबेंचर्स, और इन डिबेंचर्स को इशू करा है हमने फेस वैल्यू 100 पर विद पब्लिक डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ₹105। अब देखो हमारी इशू की टर्म क्या और हमारी रिडम्पशन की टर्म्स क्या है, पहले तो हमें यही क्लियर होना चाहिए। अगर मैं अपनी इशू की बात करूं तो 100 रुपीज में मुझे 4 रुपीज कम मिल रहे हैं, यानी कितने मिल रहे हैं 96। सिमिलरली अगर मैं अपनी रिडम्पशन की बात करूं तो रिडम्पशन के टाइम मुझे 100 प्लस 5 रुपीज एक्स्ट्रा अपने डिबेंचर होल्डर को पे करने, दैट इज 105। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमाउंट आएगा कितना और हमारे पास से जाएगा कितना। अब सबसे पहली एंट्री करी पास जनरल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। तो भाई पहली एंट्री मैं तो अपनी बुक्स में पहले करूंगी अमाउंट रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो कितने डिबेंचर है बेटा हमारे पास, 80,000 डिबेंचर है, और इन पे अमाउंट हमें कितना मिला है, हमें अमाउंट मिला है 96 रुपीज। तो हमें कितना अमाउंट मिला है 76,80,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट एंट्री हमें जो ये अमाउंट रिसीव हुआ है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, इसे ट्रांसफर करना होता है डिबेंचर अकाउंट में। सो व्हाट एंट्री वी विल पास, सी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जितने अमाउंट से हमने क्रेडिट किया उतने अमाउंट से डेबिट करेंगे, दैट इज 76,80,000। और बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होती है। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू, 80,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज के हिसाब से 80 लाख। नाउ व्हाट इज डिस्काउंट ऑन इशू, सी हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना आएगा, यू कैन सी हियर हमारे पास जो बैलेंस आएगा दैट इज 3,20,000। अब 3,20,000 का तो हमारा डिस्काउंट ऑन इशू है, इसके साथ साथ हमारा रिडम्पशन के टाइम पर 5 रुपए का प्रीमियम है, जिसके लिए क्या हम वर्ड यूज करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और कितने रुपीज है बेटा, अगर 100 रुपीज फेस वैल्यू है तो 5 रुपए का आपका प्रीमियम है। 80,000 डिबेंचर्स पे दिस अमाउंट विल स्टैंड एट ₹4 लाख, और यही आपका क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आपको बार बार मैं कह रही हूँ जितने का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उतने का ही लॉस ऑन इशू विच इज 4 लाख। हाउएवर कुछ जो ऑथर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, दे आर यूजिंग बोथ डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एज लॉस ऑन इशू। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप पूरा लॉस ऑन इशू 7,20,000 दिखा देते हैं दैट इज ऑल्सो राइट। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप बाइफिकेट करिए, डिस्काउंट ऑन इशू अलग से दिखाएं और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विच इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उसको अलग से रिफ्लेक्ट करें। Now after this the next is that we have to pass entries related to interest. So now when the interest is being paid by the company, business के लिए वो क्या है, expense। तो business अपनी books में डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। अभी अमाउंट बेटा पे किसको करना है, डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, दिस अमाउंट इज ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। और कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का, देखो आपके पास जो डिबेंचर है वो है 80,000 इंटू 100 के हिसाब से। सो व्हाट इज द अमाउंट, 80 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं। 80,000 number of debentures multiply by 100. Now we have to calculate
7% ऑफ दिस, तो बताओ आपके पास कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 80,000 का 7% इज 5,60,000। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि ये इंटरेस्ट हमने हाफ ईयरली पे किया है या ईयरली पे किया है। नाउ यू हैव टू टेक इट एज ईयरली ओनली। तो देखो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेटा, हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 5,60,000। नाउ अगर हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ 5,60,000 ट्रांसफर करेंगे, एंड दिस अमाउंट विल बी पेड टू whom? दिस अमाउंट विल बी पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू बैंक। अब देखो मैंने यहाँ पे पूरा 5,60,000 लिखा, बट दिस इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि हमारे डिबेंचर्स बेटा इश्यू कब हो रहे हैं? 1 अक्टूबर को। तो यानी आपको डेट्स का बहुत ध्यान रखना है। मैं फ्लो में आगे गई, बहुत से बच्चे होंगे जो रुके भी होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे साथ फ्लो में गए होंगे। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे पास डेट नहीं गिवन होती फिर तो हम ईयरली देते, पर क्योंकि हमारी बुक्स क्लोज हो रही 31 मार्च को और ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर को फॉर इशू, तो हम लोग यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे दैट वी विल कैलकुलेट फॉर हाफ ईयर। और अगर अब मैं हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगी तो बेटा कितना आ जाएगा? दिस इंटरेस्ट विल बी 2,80,000। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसीलिए मैंने ये लिखा था क्योंकि मुझे पता है 99% बच्चों ने इसको 5,60,000 ही लिया होगा। सो दिस इज 80 लाख का आपके पास 7% विच इज 5,60,000 फॉर द होल ईयर, बट हमने इशू ही जो है अपने डिबेंचर्स वो करे हैं 1 अक्टूबर को। नाउ हमने ये अमाउंट किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर्स को। तो टू बैंक करके हमने अमाउंट जो है वो पे कर दिया। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, जब उसे पे कर दिया। नाउ ये सब एंट्रीज करने के बाद जो भी हमारा इंटरेस्ट है दैट विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो क्लोजिंग क्या है? इट इज एन एक्सपेंस। सो पीएनएल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। और कंपनी केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। और कितना इंटरेस्ट है बेटा हमारे पास? इंटरेस्ट हमारे पास आया है 2,80,000। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हमारे पास फोर्थ केस में वो कह रहा है कि यू हैव टू राइट ऑफ लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर। अब इस केस में हमने डिबेंचर इशू ही डिस्काउंट पे किया, तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं अपने लॉस एंड इशू को राइट ऑफ करने के लिए। सो व्हाट वी विल यूज? वी विल यूज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब बेटा यहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकती है? यहाँ लिखा है राइट ऑफ लॉस एंड इशू, और मैंने बोला कि लॉस एंड इशू में आप जो अमाउंट है वो लेकर चलेंगे 4 लाख और डिस्काउंट का अमाउंट जो है 3,20,000 का अलग से लेंगे। तो बेटा जब लॉस की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला बहुत से ऑथर डिस्काउंट ऑन इशू को लॉस ऑन इशू के अमाउंट में ही ऐड कर देते, तो ये आपकी मर्जी है, आप ऐड करो या अलग से दिखाओ, दिस इज योर चॉइस। अब मैंने यहाँ अलग अलग दिखा दिया। 3,20,000 का इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड 4 लाख इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो ये दोनों ही दीज टुगेदर आर माय लॉस ऑन इशू ओनली एक तरह से। तो ये पूरा अमाउंट जो है 7,20,000 का we will write it off from the books of the company. I hope this entry is also clear. अब जो लास्ट बेटा हमें बनाना है that is loss on issue account. Now when we will prepare loss on issue account, देखो 7% डिबेंचर अकाउंट में तो हमारा क्या आएगा? डिस्काउंट का अमाउंट आएगा विच इज 3,20,000, और प्रीमियम और रिडम्पशन और लॉस ऑन इशू का अमाउंट हमारा सेम रहता है। वो अमाउंट हमारा कितना है बेटा? 4 लाख। दैट मीन्स टोटल 7,20,000 को राइट ऑफ करना है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई एसपीआर अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व,
So we will write off this amount from statement of profit and loss. तो अमाउंट कितना राइट ऑफ हो जाएगा? 7,20,000. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. और इसके साथ लॉस एंड इशू भी आपको क्लियर हो गया होगा. अकाउंट कैसे मेंटेन करना है. देखो बेटा बहुत ही आसान है. अगेन आई एम रिटरेटिंग, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस ऑन इशू एक तरह से आप देखो, मैंने आपको 4 लाख रुपीस का अमाउंट की लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में ट्रांसफर करा है. बट अगेन एट द सेम टाइम आई एम सेइंग डिस्काउंट इज ऑल्सो अ लॉस एट द टाइम ऑफ इशू. इशू के टाइम में आपको पता चल रहा है कि डिस्काउंट भी आपका एक तरह का लॉस है. तो आपको इन दोनों को ही राइट ऑफ करना है. एंड इफ यू आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, then you will use statement of profit and loss. I hope this question is clear. Now moving to our next question. Next question बेटा हमारा कह रहा है on 1st April 2020 Fast Computer Limited issued 20,000 6% debenture of rupees 100 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 years. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन पर आ रहे हैं बेटा 50 रुपीज, बैलेंस आ रहा है अलॉटमेंट पर. फास्ट कंप्यूटर के पास 50,000 का बैलेंस एसपीआर में, 1 लाख का जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 75,000. You have to pass an entry for issue of debenture and writing of loss on issue of debenture. तो पहले तो हम अपने टर्म्स ऑफ इशू देखेंगे. हमारे पास टर्म्स ऑफ इशू क्या है? 100 रुपीज का डिबेंचर है और हमारे पास 4 रुपीज का यहाँ पर क्या है बेटा? डिस्काउंट. सो हमारे पास जो टोटल अमाउंट हम कह सकते हैं जो रिसीव होगा दैट इज 96, जिसमें 50 रुपीज तो हमारा आ रहा है एप्लीकेशन पर फुल अमाउंट. तो यानी अलॉटमेंट में कितना आएगा? 46 रुपीज फॉर अलॉटमेंट और 4 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो अलग से आएगा. दिस वे वी आर कलेक्टिंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50 ऑन अलॉटमेंट. नाउ रिडम्पशन की टर्म्स क्या है? ये हमारी इशू की टर्म्स है. रिडम्पशन की टर्म्स हमारी हैं that we are issuing debentures of rupees 100 with the premium of 5. That means when we are repaying the amount, we are paying 105 rupees. Now, सबसे पहले तो बेटा हमें एप्लीकेशन की ही एंट्री करनी है. So what will be the entry? Entry will be bank account debit to 6% debenture application account. और देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? 20,000. अमाउंट कितना आया? 50. तो 10 लाख की एंट्री हो जाएगी. ये एंट्री तो बहुत आसान है. अब जितना अमाउंट हमने 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है उतना ही अमाउंट अब हम क्या कर देंगे बेटा? डेबिट करेंगे. बिकॉज जो हमारे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट और यहाँ से अमाउंट हमें डायरेक्टली ट्रांसफर कहाँ करना है? डिबेंचर अकाउंट में. तो हमने कितना ट्रांसफर कर दिया बेटा? 10 लाख रुपीज. नाउ आफ्टर एप्लीकेशन नेक्स्ट वी हैव टू पास एंट्रीज ऑफ अलॉटमेंट. देखो बेटा पहली बार तो हम रिसीट की एंट्री पहले करते हैं और ट्रांसफर की एंट्री बाद में करते हैं. बट जब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन करते हैं अलॉटमेंट के टाइम पर हम ड्यू की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री पहले करेंगे, विच इज डिबेंचर allotment account debit to 6% debenture account. Again I'm saying your choice if you want to open discount on issue account या फिर आप इसको लॉस ऑन इशू में ही लिखना चाहते हैं, आपकी चॉइस है. हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर है 20,000. कितना अमाउंट रिसीव होना है? 46 रुपीज. 46 रुपीज रिसीव होना है. रिसीव होना है तो कहाँ आएगा बेटा? It will be written here 46 into 20,000 9,20,000. जबकि मैंने क्या बोला? डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू. तो बेटा फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास? सॉरी, फेस वैल्यू हमारे पास है 50 रुपीज. टोटल 100 है और 50 हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम आ गए.
तो रिमेनिंग हमारे पास कब आएंगे, अलॉटमेंट के टाइम। अब देखो आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 4 रुपीज का, कितने डिबेंचर्स पे, 20 पर, तो यानी कितना डिस्काउंट दे दिए, 80,000। अब आपके पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं अब रिडम्पशन के टाइम, आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं 5%, यानी 5 रुपीज। तो 20,000 पे 5 रुपीज के हिसाब से दिस इज 1 लाख। और अब आप बताओ मुझे कि जितना प्रीमियम रिडम्पशन है उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख। तो क्या हम कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ लॉस कितना है हमारे पास, 1,80,000। नाउ आफ्टर पासिंग दिस एंट्री, नेक्स्ट एंट्री इज टू रिसीव अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा हमारे पास, 46 रुपीज के हिसाब से 9,20,000। आई होप इट इज क्लियर। लास्ट एंट्री क्या है, हमें इस लॉस को राइट ऑफ करना है। देखो बेटा टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस है हमारे पास 1,80,000 का। दिस 1,80,000 हैज टू बी रिटर्न। अब देखो बेटा हमारा राइट ऑफ करने का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल लॉस है हमारे पास 1,80,000 का डिस्काउंट और इशू मिलाकर, जिसमें से हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से कितना यूज कर सकते हैं, वी हैव अ बैलेंस ऑफ 50,000। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे बेटा, जनरल रिजर्व। सबसे लास्ट में पीएनएल यूज करना है हमें। तो जनरल रिजर्व से हमें कितना बैलेंस मिल गया, 1 लाख। देखो हमारा डिस्काउंट ऑन इशू कितना है और लॉस ऑन इशू कितना है। अगर मैं बात करूं अपने लॉस ऑन इशू की, दैट इज रुपीज 1 लाख। डिस्काउंट की बात करूं तो दैट इज रुपीज 80। 1,80,000 रुपीज राइट ऑफ करना है, जिसमें से मुझे 1,50,000 का बैलेंस तो मिल गया। बाकी है मुझे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से कितना अमाउंट यूटिलाइज करना है टू राइट ऑफ दिस लॉस ऑन इशू। इट इज रुपीज 30,000। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर समझ में आ जाए। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, देन हमें एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट की, और उसके बाद लास्ट में जो ये वाला पार्ट हम यूज करेंगे टू राइट ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो दो वेज में आ रहा है हमारे पास। एक डिस्काउंट की फॉर्म में आ रहा है और दूसरा हमारे पास आ रहा है लॉस ऑन इशू, दैट इज प्रीमियम रिडम्पशन की फॉर्म। तो लॉस ऑन इशू अदरवाइज जो यहाँ पर दैट इज प्रीमियम जो मैंने यूज किया रिडम्पशन के टाइम पर। बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो जो हमारा लॉस ऑन इशू अकाउंट है दैट इज प्रीमियम रिडम्पशन एज वेल एज डिस्काउंट ऑन इशू। टोटल हमारे पास कितना राइट ऑफ करने के लिए अमाउंट है लॉस ऑन इशू का, 1,80,000। क्योंकि मैं सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, सो आई एम राइटिंग बोथ द अकाउंट्स, मुझे दोनों अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Moving to our next question, question number 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास अगेन बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2020 को एक्स लिमिटेड ने 40,000 8% डिबेंचर्स इशू किए हैं, and now debentures are issued at ₹100 at a discount of 3% and redemption है 5% के प्रीमियम के साथ 3 साल के बाद। एप्लीकेशन पे 50 रुपीज आ रहे हैं, बैलेंस अलॉटमेंट पे आ रहा है। हमारे पास 1,50,000 रुपीज है एसपीआर के, 80,000 है रिजर्व के, और इस बार हमारे पास पीएनएल लॉस है 50,000 का। तो क्या लॉस की वजह से हम अमाउंट यूज नहीं करेंगे लॉस ऑन इशू में, ये इस क्वेश्चन में हमें देखना है। ऑल्दो कुछ बहुत खासा चेंज नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पिछले वाले क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए इस क्वेश्चन को एक बार ठीक से देखो। नंबर ऑफ डिवेंचर है बेटा 40,000। अगर मैं अपनी इशू की टर्म की बात करूं तो 100 माइनस 3 97 रुपीज में आई एम इशूइंग माई डिवेंचर। और टर्म्स ऑफ रिडम्पशन की बात अगर मैं करती हूं तो रिडम्पशन के टाइम पर मेरे पास 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 105 में आई एम रीडिंग। ये जो डिसाइड होता है ये इशू के
इसे डिसाइड होता है। तो देखो 50 रुपीज ऑलरेडी आ गए, तो बाकी कितना रह गया 47, और 3 रुपए किसके हो गए, डिस्काउंट के। आई होप ये पार्ट समझ में आ गया। अगेन अगर मैं एप्लीकेशन की एंट्री की बात करूं तो बहुत ही आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और देखो बेटा कितना पैसा आया। पैसा बेटा हमारे पास आया है 40,000 डिबेंचर्स के ऊपर पूरे 50 रुपीज। दैट मीन्स दैट द अमाउंट वी हैव रिसीव्ड इज 20 lakh. Now this whole amount will be transferred to debenture account. So debenture application account debit to 8% debentures. तो देखो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 20 lakh। देखो अगर इतना भी समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आगे भी समझ में आएगा। आई होप ये दो एंट्रीज क्लियर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वी ऑल नो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, तो हमने इसको क्रेडिट करके ओपन किया है। नेक्स्ट एंट्री में हमें इसको क्रेडिट करके ओपन किया है, और इसको हमें डेबिट करके क्या करना है, क्लोज करना है। और अल्टीमेटली हमारा अमाउंट जो डिबेंचर अकाउंट में ही ट्रांसफर होना चाहिए, वो सेकेंड एंट्री में ट्रांसफर हो रहा है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, अब हमें जो एंट्रीज पास करनी है, पहले अब एंट्री रिसीव की नहीं आएगी, अलॉटमेंट के टाइम ट्रांसफर की ही आएगी। सो वी हैव 8% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। So it's debenture allotment account debit to 8% डिबेंचर अकाउंट। ये बात सबको अब बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए कि यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी, और फेस वैल्यू कितनी है बेटा, पूरे 50 रुपए। 50 हमें एप्लीकेशन के टाइम आ गए, 50 अलॉटमेंट के टाइम, और कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है 40,000। तो भाई डिबेंचर अकाउंट में तो आ गए 20 लाख। और अभी हमने डिबेंचर जो इशू किए हैं वो डिस्काउंट पे किए 3 रुपीज के। तो बताओ हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू कितना आ गया, 3 रुपीज का अगर डिस्काउंट पर डिबेंचर है और नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे पास 40,000 है, तो 40,000 इंटू 3 कितना अमाउंट आ गया, 1,20,000। 20 लाख में से 1,20,000 का डिस्काउंट है, तो हमने अमाउंट कितना रिसीव किया, 18,80,000। नाउ देयर इज ऑल्सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो एक अलग ही अकाउंट है, जो हम रिडम्पशन की टर्म जो है इशू के टाइम में डिसाइड कर रहे हैं कि हम कितना एक्स्ट्रा देंगे। और 40,000 डिबेंचर्स पे कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 5 रुपए। तो ये 5 रुपए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और जितने का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उतने का ही बेटा क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना अमाउंट आ जाएगा, 2 लाख। अब अगर कोई आपसे पूछे टोटल अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू कितना है, आप बोलेंगे प्रीमियम एंड रिडम्पशन का लॉस है 2 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू का अमाउंट है 1,20,000। अगर अदरवाइज कोई मुझसे पूछे तो टोटल लॉस ऑन इशू कितना है, 3,20,000। अब मुझे इसको राइट ऑफ करना है, पर उससे पहले अमाउंट रिसीव करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट का, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना अमाउंट रिसीव करेंगे बेटा, 18,80,000। अब लास्ट एंट्री मेरे पास है राइटिंग ऑफ लॉसेस, और लॉसेस का अमाउंट टोटल कितना है बेटा, 3,20,000 मुझे राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने का ऑर्डर सबसे पहले तो मुझे क्या यूज करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और कितना अमाउंट रिसीव मैं यूज करूंगी यहाँ पर, 1,50,000। देन आई विल यूज माई जनरल रिजर्व। और कितना अमाउंट गिवन है बेटा जनरल रिजर्व का मुझे, जनरल रिजर्व इज गिवन फॉर ₹80,000. Now how much amount of discount and loss on issue is left? देखो डिस्काउंट का अमाउंट है मेरे पास 1,20,000,
और लॉस ऑन इशू का अमाउंट है 2 लाख। 3,20,000 में से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ 2,30,000 तो आ गए। तो हाउ मच अमाउंट आई विल यूज फ्रॉम माई स्टेटमेंट ऑफ P&L? भाई कोई बात नहीं, 50,000 का लॉस है, 90,000 का और हो जाएगा। तो 50,000 के लॉस की वजह से मेरी एंट्री में कोई अफेक्ट नहीं आएगा। आई विल राइट ऑफ 90,000 का जो अमाउंट है लॉस ऑन इशू का फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। With this we are through with all the questions। 5 marker questions की सारी typology हमने cover कर ली है। Thank you for watching this video। Stay connected and do subscribe my channel।